Hello everyone, welcome to Manever Education. Jai Hind, good morning. So today we will discuss the weekly current affairs, the world this week, 4th week of Feb 2022. So let us discuss, but before we going to start, I want to discuss that if you are preparing for MAH, B.Ed, CET and many more, and if you are targeting the top B.Ed colleges, so don't worry, batches launched by the Manever Education, where you can get the live classroom coaching, books and many more shortcut tricks for your exams and many more doubt solving session where you can solve your doubts with the help of the faculty members. And you can also get the recorded videos for your future. You can also get the topic wise test, mock test, and you can also get the WhatsApp group where you can solve your queries and doubts with the help of the faculty members in this kind of the groups. You can also get the 10,000 plus question for your practice, and you can also get the mentorship program with the help of the examination mentor. And if you are looking for the classroom coaching at the Mumbai, so we have a 3 center at Dadar, Borivali and the Vasai, so you can visit our center also. So what are you waiting for, guys? Book your seat now and call on 8828581455. You can also visit our website, which is called manevereducation.com/B.Ed entrance. India signed a comprehensive economic partnership agreement which is called the CEPA. Okay, तो हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था विथ विच कंट्री इन फेब 2022 के जो फरवरी मंथ है उसके हम लोगों ने सीपा एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ किया था. सो देयर आर द 4 ऑप्शंस ओवर हियर, यूएई, चाइना, ब्राजील एंड रशिया. सो करेक्ट आंसर इज द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ठीक है, सो इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रिसेंटली साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट which is called the CEPA. It is said to benefit almost 90% of trade, both export and as well as the imports. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो 18 फेब को ये सारी की सारी चीजें हुई थी. साथ ही साथ यहां पर बात की जाए सो इंडिया हैज गिवन ड्यूटी कंसेशंस ऑन गोल्ड एक्सपोर्टेड फ्रॉम द यूएई. ओके, वाइल इंडियन एक्सपोर्ट्स विल अट्रैक्ट 0% ड्यूटी ऑन ज्वेलरी. तो आप लोगों को पता होगा कि यूएई का जो गोल्ड है काफी हद तक यूज में लिया जाता है, उसके ऊपर ड्यूटी लगती है, तो यहां पर उसके ऊपर कंसेशन की बात कही गई है. ठीक है, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. खजुराहो डांस फेस्टिवल इज अ फेमस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये खजुराहो डांस फेस्टिवल हो रहा है, पर कौन से स्टेट के अंदर हो रहा होगा. ठीक है, यहां पर उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, कहां पर किया जाएगा, यानी कि ऑर्गेनाइज किस स्टेट के अंदर किया जाएगा, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र. सो करेक्ट आंसर इज द मध्य प्रदेश, एमपी. ठीक है, सो द 48 Khajuraho Dance Festival commenced from in Madhya Pradesh. The week-long festival will be held till February 26, Feb 2022. Okay, the world-famous Khajuraho Dance Festival is being organized in the Khajuraho, located in the Chhatrapur district of Madhya Pradesh. The festival is being organized on the theme of Azadi Ka Amrit Mahotsav. ठीक है, तो उसकी थीम भी याद रखिए for your strategy के. Okay, so artists from the across the country and the world are performing at the festival. Okay, so let us move on the next question. Which Indian city has been elected as the host of 2023 International Olympic Committee, which is called the IOC सेशन. ठीक है, तो कौन से सिटी के अंदर इसको होस्ट किया जाएगा 2023 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. ठीक है, सो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, चाइना और चेन्नई और हैदराबाद. ठीक है, सो देयर करेक्ट आंसर इज द मुंबई. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. सो इंडिया विल होस्ट द 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन द मुंबई. इंडिया विल बी होस्टिंग द prestigious IOC meeting for the first time since 1983. ठीक है, ये चीज याद रखें. where 86th editions या 86th session was held in the New Delhi. Okay, the session which will be held in May or June next year will include elections for the host country for the 2023 Winter Olympic and the sports program of LA 2028 Olympic Games. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को अभी के फिलहाल के लिए सिर्फ मुंबई याद रखना है. इज इट क्लियर? Okay, let us move on the next question. India along with which country agreed on road map, ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस. ठीक है, तो अगर एग्जामिनेशन के अंदर ब्लू इकोनॉमी की अगर बात आए तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस याद रखने हैं. ठीक है, सो देयर आर दी 4 ऑप्शंस ओवर हियर, यूएसए, यूएई, फ्रांस, जापान. सो करेक्ट आंसर इज द फ्रांस. ओके, सो करेक्ट आंसर इज द फ्रांस. तो इंडिया और फ्रांस के बीच में
ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस का जो रोड मैप है उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, उसमें एग्रीमेंट हुआ है, ये चीज याद रखें, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज दी फ्रांस। इंडिया एंड फ्रांस हैव एग्रीड ऑन रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस। द एग्रीमेंट एम्स टू कंट्रीब्यूट द साइंटिफिक नॉलेज एंड ओशन कंजर्वेशन एंड एंश्योर दैट द ओशन रिमेन्स अ ग्लोबल कॉमन। सो इट वॉज मेड ड्यूरिंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे जयशंकर साहब है, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब 3-day विजिट टू फ्रांस, ठीक है, 3 दिन की विजिट के लिए गए थे। एंड स्कोप इंक्लूड्स मेरीटाइम ट्रेड, मरीन इको टूरिज्म एंड इनलैंड वाटरवे, साइंटिफिक रिसर्च एंड इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट अमॉन्ग दी अदर्स, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे एस जयशंकर साहब है जो ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस के बारे में एक एडॉप्शंस की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो लेट अस मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री टॉप द मेडल इटली इन द 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स, ठीक है, चाइना, यूएसए, नॉर्वे और जर्मनी। तो यहाँ पर कौन सी कंट्री है जो यहाँ पर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के अंदर मेडल टॉप रैंक में जीते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज दी नॉर्वे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो फॉर द सेकंड गेम इन अ रो नॉर्वे टॉप्ड द मेडल टैली इन द 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स, जिसके अंदर 16 गोल्ड्स जीते थे। जर्मनी की अगर बात करो तो 12 गोल्ड्स उसके नाम पर है और चाइना की अगर बात करो तो 9 गोल्ड्स उसके नाम पर है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर जो ये जो सेशन था, यहाँ पर ये गेम थी, ठीक है, वो एंड की गई थी बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम के अंदर जो कि चाइना के अंदर है। और उसके जो प्रेसिडेंट है चाइना के जी जिनपिंग, उन्होंने इसको हैंडओवर किया था। एंड 2016 के जो होस्ट है वो है मेलिनो कार्टिनो, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा फॉर योर स्टैटिक जीके पॉइंट ऑफ व्यू। इज इट क्लियर? ओके, लेट अस मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which union minister implements the प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY स्कीम, ठीक है, ये चीज याद रखें, PMGSY स्कीम। ये जो स्कीम है दोस्तों उसके वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है, कौन से यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, आप लोगों को बताना है। सो देयर आर 4 ऑप्शंस ओवर हियर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। सो करेक्ट आंसर इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। रूरल यानी कि जो गांव के विलेजेस रहते हैं, ठीक है, और अर्बन यानी कि सिटी के जो विलेजेस रहते हैं उसको हम लोग अर्बन कहते हैं, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंप्लीमेंट्स द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम विथ नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी NRIDA as the nodal implementation agency. So recently the Union Minister for Rural Development and Panchayati Raj Giriraj Singh released Rural Connectivity GIS data in public domain, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ याद रखें रूरल डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? ओके। Which Indian mathematician was conferred रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021, ठीक है। यंग रामानुजन प्राइज जो मैथमेटिशियंस को मिला है वो किस व्यक्ति को मिला है, ठीक है, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 का, ठीक है। सो देयर आर 4 ऑप्शन ओवर हियर। नीना गुप्ता, आर प्रगनंदा। यहाँ पर आप लोगों को मैं याद करवा दूं कि ये जो भाई साहब है उसको चेस में अवार्ड मिला था, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डॉक्टर बी उमाशंकर एंड डॉक्टर कुंतल घोष, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, तो करेक्ट आंसर इज द नीना गुप्ता, ओके। Professor Nina Gupta, a mathematician at the Indian Statistical Institute in Kolkata, was conferred the Ramanujan Prize for Young Mathematicians, okay. So she received the award for the year 2021 for her significant work in affine algebraic geometry and the cumulative algebra, ठीक है। इन तीनों फील्डों में इसकी महारत है। The prize is awarded annually to researcher from a developing country funded by the Department of Science and Technology is association with International Center for Theoretical Physics which is called the ICTP, okay। इसके बारे में याद रखिएगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स ICTP and the International Mathematical Union which is called the IMU, International Mathematical Union. Is it clear? Okay, let us move on the next question. Which institutions
released reports documenting India's COVID-19 वैक्सीन डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जर्नी। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूशन जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन के रिगार्डिंग एंड साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन जर्नी के रिगार्डिंग रिपोर्ट जो है वो रिलीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस आएगा या नीति आयोग आ सकता है, जॉन हॉकिंग्स यूनिवर्सिटी आ सकता है या एम्स आ सकता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, IFC याद रखिएगा, यहां पर आप देख सकते हैं। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया हैज रिलीज्ड 2 रिपोर्ट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस व्हिच इज कॉल्ड द इंडियन चैप्टर। ओके, सो डॉक्यूमेंटिंग इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट एंड वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन जर्नी व्हिच इज बेस्ड ऑन द IFC व्हिच इज कॉल्ड इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। सो ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये इंडिया की जो वैक्सीनेशन है उसके डेवलपिंग के ऊपर फोकस करता है और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं कि 100 करोड़ रुपए का यहां पर उसको सपोर्ट मिला है फ्रॉम द PM केयर्स के जरिए एंड फॉर इंडिजिनियस वैक्सीन एंड कोलैबोरेशन फॉर इंडिया फार्मा कंपनीज विद ग्लोबल कैंडिडेट्स फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी यहां पर इंडियन फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उन्होंने भी काफी हद तक मदद करी है और उसके साथ कोलैबोरेशन किया है और 100 करोड़ रुपए की यहां पर PM केयर्स फंड में से उसको हेल्प भी मिली है। तो इस तरीके की जो रिपोर्ट है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस करना और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर अवेयरनेस फैलाना विच इज कॉल्ड द कोविन एप्लीकेशन एंड इट इज ऑल्सो अडॉप्टेड बाय द कोविन एंड इट इज ऑल्सो अडॉप्टेड बाय द आरोग्य सेतु। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की जो रिपोर्ट है वो IFC ही करती है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। इज इट क्लियर? लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्राकोरेटल विजुअल प्रोस्थेसिस विच इज कॉल्ड द ICVP। ओके, ICVP, intracortical visual prosthesis which is called the ICVP seen in the news is associated with which field? ये जो ICVP है ये कौन सी फील्ड के बारे में बात करता है? आर्टिफिशियल विजन के बारे में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, स्पाईवेयर के बारे में, नेविगेशन के बारे में। ठीक है, सो देयर आर द 4 ऑप्शन ओवर हियर, सो करेक्ट आंसर इज द आर्टिफिशियल विजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो आपके आंखों के अंदर एक आर्टिफिशियल आई बिठाई जाती है, उसके जरिए से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक प्रोस्थेसिस बिठाया जाता है और उसकी मदद से आप लोग आर्टिफिशियल आई पा सकते हैं। ठीक है, सो हैज बीन सक्सेसफुली सर्जिकल इंप्लीमेंटेड इन द स्टडी फर्स्ट पार्टिसिपेंट। द सिस्टम इज सेड टू हैव द पोटेंशियल टू रिस्टोर पार्शियल विजन टू पीपल हु हैव लॉस्ट देयर साइट विच इज कॉल्ड द ICVP। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति का विजन चला जाता है तो इस तरीके के ट्रीटमेंट से उसको विजन मिल सकता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, सो ICVP इज एन इम्प्लीमेंट दैट द बाईपास इज द रेटिना एंड ऑप्टिक। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा आई का पोर्शन होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक आई का पोर्शन होता है, तो यहाँ पर लेंस होता है और यहाँ पर पूरा रेटिना, कॉर्निया, ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, सो ICVP की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहता है कि ये रेटिना का बाईपास करता है और ऑप्टिक नर्व्स जो रहती है इसके साथ जो नर्व्स कनेक्टेड रहती है नर्वस सिस्टम के साथ, ठीक है, उसको ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है अपने ब्रेन वर्टेक्स के साथ। ठीक है, सो ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स है, वर्टेक्स है, उसके साथ यहाँ पर उसको कनेक्ट किया जाता है ICVP के जरिए से। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है आई के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो लेंस अगर सही है पर यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर सही नहीं है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है। लेंस को भी अभी फिलहाल रिप्लेस किया जा सकता है, आपके इंटरनल जो लेंस है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर फिर से आप नया लेंस लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं विच इज इंक्लूडेड इन द ICVP एंड ICVP इज रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल विजन। इज इट क्लियर? ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which space mission or satellite of ISRO has detected solar portion events for the first time? Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, Mars orbiter mission या Mangalyaan 2? So correct answer is the Chandrayaan 2. Is it clear? So Chandrayaan 2 orbiter has detected solar portion proton events via its large area soft X-ray spectrometer which is the class spectrometer. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते चंद्रयान 2 और ये जो ऑर्बिटर है, हम लोगों की बात हुई थी एक बार चंद्रयान 2 के दौरान कि लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटर है वो डिटेक्ट किया जाता है सोलर प्रोटॉन इवेंट्स के जरिए से एंड द प्रोटॉन इवेंट्स आर सेड टू इंक्रीज द रेडिएशन एक्सपोजर टू ह्यूमंस इन स्पेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, पर फिलहाल अभी आप मिशन ही याद रखें। इज इट क्लियर? ओके,
Let us move on the next question. Who was recently appointed as the CEO of National E-Governance Division, which is in NEGD? ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के जो CEO है किसको अपॉइंट किया गया है? विनय सिंह जी को, विनय ठाकुर जी को, अभिषेक सिंह जी को या सत्यनारायण मीना जी को? सो करेक्ट आंसर इज दी अभिषेक सिंह जी को। यहाँ पर आप उसके फोटो भी देख सकते हैं। सो इन द टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव रेलिमेंट द यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू एलिवेट सीनियर IAS ऑफिसर्स एंड डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन CEO Abhishek Singh as a new e-governance division which is based on the NEGD। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखें फ्रॉम द अपॉइंटमेंट सेक्शन। ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Exercise Dharma Garudian 2022 is a military training exercise of India with which country? ठीक है, तो यहाँ पर 4 आप लोगों को कंट्री के नाम दिए गए हैं, जापान, श्रीलंका, नेपाल और फ्रांस। करेक्ट आंसर इज दी जापान। ठीक है, यहाँ पर आप उसकी फोटो देख सकते हैं, ये जापान और ये है इंडियन आर्मी। ठीक है, सो थर्ड एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन द एक्स धर्मा गरुडियन 2022 बिटवीन द इंडिया एंड द जापान विल बी कंडक्टेड ऑन फ्रॉम 27 फेब। ठीक है, तो आज की अगर बात करूं तो आज 27 फेब है, तो आज से ये जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पर होगी दोस्तों? कर्नाटक के अंदर में होगी, बेलगांव के अंदर में होगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और कहाँ तक होगी? 10 मार्च तक ये एक्सरसाइज रहेगी। ठीक है, 10 मार्च तक ये एक्सरसाइज रहेगी। इज इट क्लियर? ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन? ठीक है, अमित घोष, अनिरुद्ध सूरी, अमर्त्य सेन एंड चेतन भगत। सो करेक्ट आंसर इज दी अमृत्या सेन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिरुद्ध सूरी। ओके, अनिरुद्ध सूरी इज द करेक्ट आंसर। Amritya Sen is not your correct answer. Anirudh Suri is your correct answer. Is it clear? Please correct it from this one. ठीक है, Anirudh Suri is your correct answer, not the Amritya Sen। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखें, इंडियन ऑथर अनिरुद्ध सूरी हैज कम आउट विथ हिज न्यू बुक टाइटल द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन। तो उसका आप कवर फोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है अनिरुद्ध सूरी। ठीक है, please correct it from this kind of the questions. Okay, let us move on the next question. The Indian Institute of Technology will establish its first branch outside India in the which of the following country? ठीक है, so USA, UAE, ओमान या नेपाल? तो IIT एक्चुअली क्या है कि भारत देश के अंदर है IIT। जैसे कि अगर बात करूँ तो IIT बॉम्बे, IIT मुंबई, ठीक है, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, ठीक है, IIT साउथ में भी IITs रहती है। ठीक है, तो बहुत सारी IITs है, पर ये काफ़ी हद तक हमारे इंडिया के पोर्शन में ही है। ठीक है, इंडिया के पोर्शन में ही है, पर अभी ये बाहर के कंट्रीज़ में भी जाएगी। तो कौन से कंट्री में जाएगी? ठीक है, या एस्टेब्लिश होगी? सो UAE दुबई के अंदर होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया टू सेट अप फर्स्ट IIT अब्रॉड। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स दुबई के अंदर होगा। इज इट क्लियर? ट्रेड डील साइन की गई है इसके द्वारा। Okay, let us move on the next question and the last question. What is the name of official mascot of the South Asian Cross Country Championship? Vinicius Sohrang, Ekimiji and Bing Dwayne Wen। ठीक है, so correct answer is the Ekimiji। यहाँ पर आप उसका मैस्कॉट दे सकते हैं और मैस्कॉट का नाम है एकिमिजी। कॉनेशन ऑफ द वर्ड एम्बिशन डिराइव्ड फ्रॉम द सुमी dialect of the Naga tribe which exemplifies the ambition of the new generation of Naga youth। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, Naga youth। Okay, done। So that's it for the today's session। So before we complete the session, I want to discuss that if you are preparing for MAH, B.Ed, CET and many more, and if you are targeting the top B.Ed colleges, so don't worry, batches launched by the Manever Education, where you can get the live classroom coaching, books and many more shortcut tricks for your exams and many more doubt solving session where you can solve your doubts with the help of the faculty members. And you can also get the recorded videos for your future. You can also get the topic wise test, mock test, and you can also get the WhatsApp group where you can solve your queries and doubts with the help of the faculty members in this kind of
of the groups. You can also get the 10,000 plus question for your practice, and you can also get the mentorship program with the help of the examination mentor. And if you are looking for the classroom coaching at the Mumbai, so we have a 3 center at Dadar, Borivali and the Vasai, so you can visit our center also. So what are you waiting for, guys? Book your seat now and call on 8828581455. You can also visit our website, which is called manavereducation.com/B.Ed entrance. If you are preparing for the low entrance examination or any examination, so please contact the Manave Education, where you can get the clear guidance over here. Okay, so thank you, Jai Hind, bye bye. And if you like the session, so please subscribe the channel and like the session and share the session with your friends, family members and the colleagues who are preparing well for this kind of the examination. So once again, thank you, Jai Hind, bye bye.